Hello everyone, welcome to this 18th episode of Chit Chat. Today Raju and me will be talking about the markets and he'll be talking about some specific trading system based on Renko charts. So before that, let us see what has happened to the market in the last week or so. So coming to the EOD point and figure chart of Nifty, it has definitely the bullishness which was seen over the last few weeks, many weeks is sort of over for the time being. It has not yet become bearish because below the moving average you need a double bottom sell. So maybe now if we have a pullback, a column of X, and then a next double bottom sell below this current low, that will be a bearish setup. So till that time we can play for trade for a pullback. So that is the view right now based on the EOD chart. Looking at the intraday chart of Nifty on point and figure, this also definitely is bearish for the time being. So only thing is yesterday it took seems to have taken support near the lows. So now if it goes above 17,800, then there might be some respite for the bulls. But as of now, definitely it looks weak, and only consolation right now is this week's chart which I have been showing. For some strange reason, yesterday VIX did shoot up in the first hour or so. It went all the way to 19.5, but then finally closed much lower, which is near 17.4. And I have been talking about this point and figure chart of VIX, which is here. That old trend line which has been acting over the last many weeks is still in play, and it has not been crossed. But now the next double top buy, which will be above 18.5, will not be just be a double top buy, it will also cross the 45-degree trend line. So any close above 18.5 on VIX might be bad for the market. Right now it is 17.4, so it's quite close. So let's see what happens to VIX also Monday onwards. Similar way on Bank Nifty. Okay, let me show the candlestick chart of Nifty first. This was quite a bad fall all the way from 18,600 to 17,600, almost 1,000 points and quite fast. But right now it is at a level from where the last run had started, which was near 70,550, 70,600. That was a place from where it started the rally of 1,000 points, which was at the beginning of the October expiry. In fact, I remember 1st October was this candle over here when it made a low of 17,452 and then gapped up and then went all the way to 18,600. So even on a candlestick chart, it is very close to support, and we might see a pullback. Just to identify what kind of support, this is a good support to look at, because here we had a very big red candle, the low of which was 17,613, and there is no reason to be surprised. Yesterday's low also was 17,613. So 17,613 to maybe this high of the gap, which is 17,452. That low, that range has to be seen for any support. On the Bank Nifty chart, it's a bit more bullish to look at. But again, if you see something which I'll show in 1 minute, this was a high after which it gave a decline. Sorry. Anyway, there's no need of a trend line. I'll just draw from the cursor. You'll see here, this was the high after which it gave a decline, and then the run started of Bank Nifty. In fact, Bank Nifty had outperformed Nifty for a change over the last 10 days. So this high was near 38,355, and yesterday's low was near 38,426. So 38,350, 38,400 is the support for Bank Nifty spot. So that also is very close to support. So basically, what I'm trying to say is, market, though it has been bearish over the last 4-5 days, both are very close to support, and we might see a pullback. Before that, let me show the point and figure chart of Bank Nifty relative strength. As is seen over here, it was outperforming all the way from 13th October to 25th October. Those 10 days, Bank Nifty outperformed, and then started the fall. Bank Nifty underperformed Nifty, and so that has to be seen, because on a EOD chart, it still looks like it's a column of. I had tweeted this 45-degree trend line, I remember, and it never went to that 45-degree trend line, and the column of O has come before that. But now yesterday we have a small column of X, so maybe a column reversal has started. It might go back to the it might retrace the column of O, so that has to be seen very closely, and that the intraday chart on a 1 minute time frame will give us an idea of what is going to outperform, Bank Nifty or Nifty. Coming to the options chart, 17,700. This is quite interesting. A lot of people talk about theta decay and all that, but yesterday, within the day, within 2-3 hours, when Nifty made a
first low in the morning, that time this 17,700 put. Why I'm taking 17,700? Because that was at the money. Nifty went just below 17,700. This made a high of 199. After that, Nifty futures made a new low, and Nifty spot I think did not make a new low, but went very close to the morning low. But this put never went back to the low, back to the highs. Yes, there is a time taker, no doubt. But then if there had been momentum in the shorts, in a way, momentum in the puts, this put would have at least gone to the high or maybe even crossed it. So that it has given a much lower high. And now if it gives a breakdown much below this 105 level, that again will confirm that Nifty is in a pullback mode, pullback in the sense on a rise. At the same time, this 17,750 call, this was making new lows when Nifty made a, if you can see here, this morning low was over here, and after that when Nifty made a new low, this made a further new low. So definitely there was selling in the call, so which again shows that there was bearishness, but that bearishness was not as high with momentum that the puts could cross the high. So that was a sign that we might start a pullback up to where that no one can say that. We'll have to see as the time goes next week. But for the sake of this call, this has to cross this 156, 160 level to start with, and then after that it can rise up by another 100 points, which means Nifty can rise by another 150, 200 points. So maybe 17,900, 18,000 is the kind of pullback we can look at to start with. So I'm not saying that we might not cross 18,000. Who knows? Anything can happen in the market. But for the time being, if the low of 17,600 is not broken, we might go back to 18,000 in the next couple of days. That is what we can see right now from these charts. Coming to the intraday chart of Nifty futures on an hourly chart. See this. Look at the low yesterday. This new low which was made near 17,659. That was exactly where there was a big sell-off over here on the left-hand side on 6th of October. So that high and this low is exactly matching. So basically, it was the gap which gave the support. Again, like I said, 17,610 on spot and 17,650 on the futures is extremely important. For any safety, this 17,955, which was the high, 17,944, 17,930. This band might act as a resistance, which is again another 200 points. So nowadays with Nifty at elevated levels, 200 points is nothing. It can do it in a couple of hours. So it all depends on what happens after it, if and what happens after it reaches 18,000. But for the time being, I think if this low is not broken, we might have seen a small pause for the fall and we might see a pullback rally. Bank Nifty also, in fact, the morning low was not broken at all. This is Bank Nifty futures, and this again also showed some kind of bullishness, but again this high here, which is 39 near 900, that has to be crossed. So all in all, it seems that we might have made a panic low yesterday, at least for the very short term. But whether Nifty has made a low for this downtrend, that is not possible to say because it's too early in the days. Because right now most of the charts are looking bearish, so it will be very risky to call a bottom. But definitely, if anyone is short, if these lows don't break on Monday, you need to consider whether to hold shorts and whether to look for longs. Of course, if it crosses 18,000, then maybe another 200-300 points. But then that last week high from where the selling came near 18,300, 350. In fact, 350 futures was a double top period of 2 days. So that might act as a very strong resistance on any rise. So first 18,000 and then next 18,350, as long as 17,600 and 17,650 is not broken. So that is all from my side. Raju, कुछ questions है या I can make you the presenter? Hello. हाँ सर, अगर निफ्टी का ब्रेथ एक बार रन करो, सो करंट निफ्टी ब्रेथ कहाँ पे है? सो ये कौन सा X% की डीटी? एक आपको X%, ऑल सेक्टर की 50, निफ्टी 50 बोलनी है। अरे ये तो एकदम नीचे गया, 18 है अभी 16। सो ये सॉर्ट ऑफ यानी 15 का जो लेवल है 15-16, सो ये सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीम जोन में है। सो मे बी पुल बैक जैसे आप बोले आ सकता है, बट जो चार्ट जो सेटअप है वो एंकर कॉलम है और बिलो मूविंग एवरेज है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि एकदम बुलिश सेटअप। सो ओवरऑल चार्ट जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश शॉर्ट टर्म में हो गया है, बना है, बराबर है। बेरिश या एटलीस्ट नेक्स्ट फ्यू डेज में भी साइडवेज हो सकता है और फॉल नहीं आया तो साइडवेज जा सकता है। ओके सर। सो आज जो मैं बात करूंगा रेनको चार्ट पे, बिकॉज बहुत सारे जो हम लोग स्ट्रेटजी डिस्कस किए पीएनएफ पे, अदर चार्ट्स पे। सो यहाँ से हम रेनको अदर भी चार्टिंग मेथड
जो जो एकिनाची हुआ या लाइन ब्रेक हुआ, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रेनको चार्ट में जो जो ट्रेडिशनल जो चार्ट होता है वो मोस्ट जो प्लॉट होता है सो प्राइस और टाइम के कॉम्बिनेशन से। सो प्राइस पे वाई एक्सिस और टाइम पे हम लोग एक्स को प्लॉट करते हैं। सो एवरी डे अगर मान लो कि अगर एक कैंडल डेली कैंडल है, सो इंस्टीड ऑफ एनी सिग्निफिकेंट मूव ऑफ प्राइस हम लोग एक कैंडल फॉर्म करते हैं। अगर मान लो कि यहाँ की कोई चार्ट है किसी दिन का, प्राइस जो है जहां पे ओपन हुआ, लो क्लोज, यानी ओपन हाई लो क्लोज, बिकॉज कैंडल में ये चार इंफॉर्मेशन मिलता है और ये चारों सेम है, फिर भी हम लोग एक कैंडल फॉर्म करते हैं। व्हाई? बिकॉज वी प्लॉट टाइम आल्सो। सो ये मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, और इस तरह हम लोग जैसे जैसे यानी कैंडल टाइम एक एक दिन आगे जाएगा, हम लोग एक कैंडल फॉर्म करते हैं। बट इन पॉइंट एंड फिगर चार्ट या इनको चार्ट, ये सब में हम लोग क्या करते हैं? ओनली प्राइस प्लॉट करते हैं। अब ये अगर आप देखो, सो जैसे हम लोग पॉइंट एंड फिगर में हम लोग जो प्लॉट करते हैं, प्राइस गोइंग अप सो वी प्लॉट एक्स, एंड इफ प्राइस गोइंग डाउन सो वी प्लॉट ओ, यानी एक्स और ओ प्लॉट करते हैं, सिंपल। सो सेम वे यहाँ पे जो हम लोग प्लॉट पॉइंट एंड फिगर में जो प्लॉट करते हैं वो वर्टिकल प्लॉट करते हैं, करेक्ट। अब यहाँ जो रेनको चार्ट पे जो प्लॉट करते हैं वो ब्रिक फॉर्म करते हैं इंस्टीड ऑफ एक्स। जैसे आपको अगर आप एक्स या वो अगर आप देखो कि अगर प्राइस अगर ऊपर जा रहा है सो वी ब्रिक, हम लोग एक बुलिश ब्रिक यानी ग्रीन ब्रिक बनाते हैं। जब प्राइस अगर नीचे आ रहा है सो हम लोग रेड ब्रिक बनाते हैं। अब ये ब्रिक में अगर हम देखें सो एक ऊपर का और एक नीचे का वैल्यू मिलता है। सो ये हुआ लो वैल्यू और ये हुआ हाई वैल्यू। सो एवरी ब्रिक का एक लो वैल्यू और एक हाई वैल्यू रहता है। सो लेट्स एग्जांपल, थोड़ा सा हम इसको बेसिक फास्ट बताते हैं कि अगर ये नीचे का ब्रिक जो दिख रहा है अगर 100 है और 5 ब्रिक का यानी 5 पॉइंट पे एक ब्रिक फॉर्म होता है, सो इसका वैल्यू क्या होगा? ये नीचे 100 और ऊपर में 105 फर्स्ट ब्रिक का। सेकेंड ब्रिक का जो लो रहेगा 105 और हाई जो रहेगा 110। सेम वे नेक्स्ट ब्रिक का फॉर्म होगा जब 115 जाएगा, उसके बाद फिर 120, 125, 130। सो एवरी 5 पॉइंट पे हम लोग एक एक ब्रिक फॉर्म करते जाएंगे। सेम वे अगर नीचे अगर मान लो कि आगे बेरिश ब्रिक बन रहा है, सो ये रेड ब्रिक जो फॉर्म होता है, तो एक एक ब्रिक हम लोग जैसे ये लेट्स एग्जांपल ये 100 है, सो नीचे वाला 95, फिर नेक्स्ट में 90, 85, 80, ऐसे एक एक ब्रिक हम लोग फॉर्म करते जाए। सो एवरी ब्रिक हम लोग को क्या इंफॉर्मेशन देता है? दो वैल्यू का, एक लो वैल्यू और एक हाई वैल्यू। लेकिन एक मिनट, जैसे पीएनएफ में कहते हैं कंटिन्यूअस ब्लॉक साइज, वैसे रेंको में भी लॉग ब्रिक साइज ज्यादा फायदे का है ना प्लॉट करना? हाँ, सो ये जो एग्जांपल जो मैंने डिस्कस किया ये 5 बॉक्स सीज है एब्सोल्यूट बॉक्स, सो जस्ट एग्जांपल देने के लिए। सो आप इसमें रेनको जो चार्ट है वो एब्सोल्यूट पे प्लॉट कर सकते हो, लॉग पे प्लॉट कर सकते हो, एटीआर पे, ये बहुत सारे ये मेथड है। बट लॉग पे क्यों इंपॉर्टेंट है प्राइस को देखना? बिकॉज अगर कोई चार्ट अगर है कोई स्टॉक्स जो कभी मान लो कि 1000 पे ट्रेड हो रहा है और आज कभी 100 पे ट्रेड हो रहा है, सो 10 रुपीज मूव ऑन 1000, यानी जब 1000 था और वहां पे 10 रुपीज मूव, वो परसेंटेज कम है। और अभी अगर 100 रुपीज है और उसका 10 रुपीज मूव होता है, सो वो सॉर्ट ऑफ 10% मूव होता है। सो ये डिफरेंस होता है ब्रिक का साइज में। सो इंस्टीड ऑफ एब्सोल्यूट बॉक्स वैल्यू वी शुड यूज लॉग बॉक्स वैल्यू। सो अगर मान लो 1% ऑफ 1000 और अभी 100%, 100 रुपीज ऑफ 1%, सो दोनों सेम रहेगा, इसलिए लॉग बॉक्स वैल्यू यूज करते हैं। और सेकेंड थिंग, जैसे हम लोग पॉइंट एंड फिगर में हम लोग वर्टिकल प्लॉट करते हैं, यहाँ पे डायगोनल प्लॉट करते हैं। सो यहाँ जैसे ब्रिक प्लॉट किया और उसके डायगोनल में एक और ब्रिक प्लॉट करते हैं और ये कंटिन्यू रहता है। ठीक है सर? करेक्ट। ओके, सो ये हुआ स्विंग कंटिन्यूअस यानी बुलिश ब्रिक। अब नाउ क्वेश्चन कि ये ब्रिक टर्न कब होता है? सो कंटिन्यूअस अगर मान लो ये अगर बुलिश ब्रिक कंटिन्यू है, सो प्रीवियस जो दो ब्रिक के नीचे जब प्राइस जाता है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे है, रिसेंट ब्रिक अगर अप का देखें, सो उसके प्रीवियस ब्रिक का लो है ये, इसके नीचे जब आएगा तो हम लोग ब्रिक रिवर्स करते हैं। सेम वे अब दो ब्रिक के ऊपर अगर जाता है सो हम लोग प्राइस को यानी ब्रिक को चेंज करते हैं कलर। सो ये बेसिक है, इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है
इन साइट पे, सो आप जाके देख सकते हो कि इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। ओके, सो उस पे हम बहुत ज्यादा नहीं ये करते हैं डिस्कस। सो ये आप देखो एक बेसिक किसी भी चार्टिंग में अगर हम देखें, सो जैसे ब्रिक अगर रिवर्स होता है, सो इसको हम इस हाई को क्या बोल सकते हैं, स्विंग हाई। सेम वे ब्रिक अगर कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ बेरिश ब्रिक अगर फॉर्म हो रहा है या कोई भी, सो और जैसे ही बेरिश ब्रिक टर्न होता है बुलिश में, सो इस पॉइंट को हम लोग स्विंग लो बोल सकते हैं। सो दिस पैटर्न इज कॉल्ड द बेरिश टर्न। सो यहाँ पे अगर देखो तो बेरिश ब्रिक टर्न और बुलिश ब्रिक टर्न। अब अगर कोई किसी सो अगर मान लो कि नेक्स्ट अब क्वेश्चन रहता है कि कौन सा ब्रिक वैल्यू हमको यूज करना चाहिए। सो शॉर्ट टर्म के लिए 0.50 ये डेली ईओडी के लिए है, मीडियम टर्म 1% आप यूज कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए 3%। सेम अगर इंट्राडे के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो 0.25% आप 1 मिनट टाइम फ्रेम और 0.10 एंड 15% फॉर बैंक निफ्टी, ये आप यूज कर सकते हो। जो जैसे मैंने डिस्कस किया कि किसी भी चार्टिंग का कोई भी चार्ट हो, सो उसमें हम लोग एज ए स्विंग ट्रेडर क्या करते हैं कि स्विंग ब्रेकआउट होता है, सो हम लोग बाई करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें विदाउट ब्रेकआउट, सो अगर दो ब्रिक अगर सेम लेवल पे फॉर्म होता है, सो ट्रेडिशनल में इस चार्ट को इस मेथड को क्या बोलते हैं कि डबल टॉप फॉर्म हुआ है, isn't it? बिकॉज सेम एरिया में प्रीवियसली अगर इस एरिया में यहाँ रेजिस्टेंस लिया और सेम एरिया में फिर से रेजिस्टेंस लिया, वहां से ब्रिक रिवर्स होता है, सो इसको बोलते हैं डबल टॉप, सेम में डबल बॉटम। अब ये स्विंग हाई भी है, तो स्विंग हाई के ऊपर जैसे ही एक ब्रिक फॉर्म होता है, सो दिस इज कॉल्ड अ बुलिश स्विंग ब्रेकआउट। ठीक है, ये ये स्विंग लो है, पॉइंट एंड फिगर पे डबल टॉप बाय है, बराबर, शॉर्ट ऑफ, यस। सो जैसे डबल टॉप बाय इज इन पॉइंट एंड फिगर, एवरी डबल टॉप और डबल बॉटम इज ए स्विंग ब्रेकआउट। जैसे कैंडल्स में होता है कि प्रीवियस स्विंग के ऊपर जाता है, तो ये शॉर्ट ऑफ। यहाँ पे हम लोग ओनली प्राइस प्लॉट करते हैं। सो ये ब्रिक जो है, ये सीरीज ऑफ ब्रिक हो सकता है कि मल्टीपल डेज का है, बिकॉज टाइम प्लॉट नहीं करते हैं अगर हम ईओडी देख रहे हैं तो। सेम वे जैसे स्विंग बेरिश स्विंग ब्रेकआउट हुआ, सो ये प्रीवियस स्विंग लो है, उसके नीचे एक ब्रिक जैसे फॉर्म होता है, सो इसको बोलते हैं बेरिश स्विंग ब्रेकआउट। सो कोई भी ये इजिली समझ में आ जाता है। अब इसके साथ एक ये है कि स्विंग ब्रेकआउट पे अगर स्टॉप लॉस, अब अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड लिए ये बेरिश स्विंग ब्रेकआउट पे, सो मेरा स्टॉप लॉस किधर रहेगा क्वेश्चन। सो हो सकता है कि हम स्विंग ब्रेकआउट पे स्विंग हाई और स्विंग लो का ही स्टॉप लॉस ले। सो इन करंट सिचुएशन स्विंग हाई क्या है मेरा, ये, सो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। सो इन सम केसेस, सो वहां स्टॉप लॉस मेरा थोड़ा बिग रहता है। सो बेटर क्या है कि इंस्टेड ऑफ ओनली स्विंग हाई और स्विंग लो ब्रेकआउट अगर आप ट्रेड कर रहे हो, सो वहां एक पैटर्न है, वन बुलिश वन ब्रिक बैक और बेरिश वन बैक। सो बुलिश वन बैक और बेरिश वन बैक। सो यहाँ ये एग्जांपल में देखो, सो ये प्रीवियस स्विंग लो है और यहाँ स्विंग ब्रेकआउट हुआ, सो बेरिश स्विंग ब्रेकआउट। उसके ऊपर आप देखो, सो बिफोर स्विंग ब्रेकआउट प्राइस यानी ब्रिक रिवर्स हुआ है, बुलिश ब्रिक रिवर्स, और वन ब्रिक फॉर्म हुआ और इमीडिएट एंड बेरिश ट्रेंड में रिवर्स हुआ। सो दिस इज कॉल्ड अ बेरिश वन बैक। सेम वे ये एक ब्रिक के बदले दो ब्रिक भी हो सकता है ऊपर। जैसे आप इस केस में देखो, यहाँ वन ब्रिक फॉर्म हुआ, एक और ब्रिक फॉर्म हुआ और इमीडिएट उसके ब्रिक रिवर्स हुआ, बेरिश ब्रिक और बेरिश स्विंग ब्रेकआउट हुआ। सो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे स्विंग ब्रेकआउट विथ वन बैक। ठीक है, मतलब ये कह सकते कि वन बैक पे ही अगर रिवर्सल हो रहा है, दैट मींस द ट्रेंड इज रॉन्ग। एग्जैक्टली। सो फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव हम अपने को ये भी देखना है कि मेरा ये स्टॉप लॉस अफोर्डेबल है कि नहीं। सो ये वन बैक और टू बैक आपको अफोर्डेबल स्टॉप लॉस दे देता है। और दूसरा ये दिखाता है कि ये सॉर्ट ऑफ थोड़ा पुल बैक हुआ, यानी रिट्रेस हुआ प्राइस, ये बेरिश ब्रिक सीरीज ऑफ बेरिश ब्रिक है और रिट्रेस हुआ और इमीडिएट फिर से टर्न हुआ इन सेम डायरेक्शन। सो ये अफोर्डेबल स्टॉप लॉस है। सो ये वन बैक हुआ और यहाँ टू बैक हुआ। सो ये दोनों पैटर्न फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रेडिंग, ये इवन शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, इंट्राडे हो, इवन इंट्राडे अगर आप कोई ट्रेडर है और कोई सीरीज ऑफ बेरिश ब्रिक जो फॉर्म होता है और उसके बाद कोई वन बैक और टू बैक फॉर्म होता है,
उसका स्विंग ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं इजिली। ट्रेड पॉइंट पे हम बताते हैं कि आप उसको स्कैन कैसे कर सकते हो। और यहाँ आप स्कैनर में गए और ईओडी स्कैनर, सो रेनको स्कैनर यहाँ है, उसमें मैंने सिलेक्ट किया निफ्टी 50। सो निफ्टी 50 में रेनको वन बैक यहाँ निफ्टी 50, सो यहाँ पे प्री डिफाइन मैंने सिलेक्ट किया और वन बैक। सो वन बैक बेरिश हम सर्च करते हैं और इसमें बॉक्स साइज हम 0.25 करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म। और डेली चार्ट पे जस्ट चेक करें निफ्टी 50 में कौन कौन से स्टॉक्स है जो बेरिश वन बैक दिया है। सो महिंद्रा अगर आप देखो, सो यहाँ बेरिश वन बैक फॉर्म हुआ है ऑन 0.25% चार्ट, ठीक है। सो इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपको दिख जाएगा, इसका जो रिवर्सल ब्रिक साइज यानी इसके ऊपर एक ब्रिक फॉर्म। सो ये मेरा स्टॉप लॉस एंट्री इस ब्रिक पे करेंगे। अब इसको अगर हम बुलिश अगर चेंज करते हैं सेम, सो बुलिश में मुझे एक भी स्टॉक नहीं दिख रहा है क्वालिफाई हुआ है ऑन 0.25%, और बेरिश में केवल महिंद्रा क्वालिफाई हुआ। तो इसका प्रोबेबल पैटर्न भी है, आप प्रोबेबल भी रन कर सकते हो। सो वन बैक बेरिश प्रोबेबल, वन बैक बुलिश प्रोबेबल। तो ये आपको हेल्प करेगा फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, या आपको प्रोबेबल कोई भी आपको जानना है कि ये बेरिश टर्न हुआ है या नहीं। सो ये वन बैक का हुआ, वैसे ही टू बैक बुलिस आप कर सकते हो, टू बैक बुलिस और बेरिश स्कैनर। सो टू बैक बुलिस का अगर हम देखें, सो कोई जस्ट हम रन करना चाह रहे थे कि बुलिस में चांसेस कम है मिलना, बिकॉज निफ्टी फॉल हो रहा है और निफ्टी 50 में नहीं मिलेगा। सो बेरिश, सो आप देखो यानी इवन कोई भी बेरिश टू बैक भी नहीं है। सो ये इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि वो कंटिन्यूअस ट्रेंड में हो, सीरीज ऑफ बेरिश ब्रिक में हुए, इसलिए यहाँ पे नहीं शो कर रहा। सो जस्ट हम निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहे हैं कि निफ्टी में अगर मुझे ट्रेड करना है ये सेम सेटअप सेम पैटर्न। सो मैं इंट्राडे के लिए 0% यूज करता हूं फॉर रेनको। सो यहाँ ये इंट्राडे का एक ये था वन बैक, आप देखो ये वन बैक, ये टू बैक, ये एक अलग पैटर्न है। सो वन बैक टू बैक नहीं है, ये अलग पैटर्न ही है जिस पैटर्न को जीत जाएगी, इस पे कभी हम डिस्कस करेंगे कभी लेटर। सो यहाँ देखो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, वन बैक, अगेन वन बैक, फिर से एक और ट्रेंड, वन बैक। सो आप देखो अगर वन बैक पे अगर ट्रेड करते हो, सो ये स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे में। यहाँ बुलिश टू बैक हुआ फॉर्म, इमीडिएट ब्रेक रिवर्स हुआ और वन बैक के साथ स्विंग ब्रेकआउट पे ट्रेड हुआ। सो यहाँ एक और इंडिकेटर जो हम लोग किए है स्टडी और स्विंग। एक मिनट, यहाँ से इट इज वेरी क्लियर कि वेडनेसडे को जो 18,300 के नीचे सेल आया, वो क्लियरली देयर वाज नो रिवर्सल टिल यस्टरडेज लो, मॉर्निंग लो। एग्जैक्टली। सो ये एक स्विंग लाइन ब्रेकआउट का एक इंडिकेटर है। सो आप इसको आप यूज कर सकते हो। सो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, अगर मान लो और ये सिस्टम को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, सो इसके ऊपर जाएगा तो मेरा बुलिश हो जाएगा टर्न। सो ये जो स्विंग ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा है, सो ये एक उसके लिए करेक्ट। सो इसके लिए एक स्टॉप एंड रिवर्स सिस्टम ये थ्रू स्विंग लाइन कर सकता है योग। अब इसमें आपका साइज आप ये कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड है 0.10 ही आप यूज करो। हाँ, इंट्राडे जिसको स्कैल्पिंग करने का वो 0.05 यूज कर सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर। और कुछ अगर क्वेश्चन अगर आपको लगता है तो इसमें आप पूछ सकते हैं। इसका बैंक निफ्टी में दिखाओ ना इंट्राडे। सो बैंक निफ्टी के लिए आप 0.15% बॉक्स साइज आप यूज कीजिए। सो ये बैंक निफ्टी 0.15% है। तो ये भी सेम वेडनेसडे, अगर इस पे हम वेडनेसडे के बाद सीधा कल मॉर्निंग लो तक ये बैंक निफ्टी में। सो कल अगर हम कल का अगर बात करें, सो कल इवनिंग में यानी 3:30 के समय ये जस्ट एक स्विंग ब्रेकआउट दिया है बैंक निफ्टी ने, इसलिए कि यहाँ पे मल्टी ब्रिक ब्रेकआउट भी है प्लस प्रीवियस स्विंग के। यानी अगर आप देखो, सो यहाँ पे रेनको चार्ट में आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो मल्टीपल ब्रिक अगर आप देखो, सो सेम एरिया में फॉर्म हुआ है, सो इट्स एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, isn't it? अब यहाँ अगर हम देखें, सो ये ब्रिक जो है सेम एरिया में फॉर्म हुआ है। सो ये अगर शॉर्ट टर्म के लिए ये सपोर्ट का वर्क करता है। सो इजिली आइडेंटिफाई, यहाँ देखो आप मल्टीपल ब्रिक सेम एरिया में फॉर्म हुआ। सो ये आई को यानी इजिली अंडरस्टैंड है, समझ में आ जाता है कि यहाँ की कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस है। ये मल्टी ब्रिक था और उसके बाद का ब्रेकआउट कंटिन्यूअस, सेम में ये मल्टी ब्रिक ब्रेकआउट उसके बाद ब्रेकआउट। सो उस पर हम लोग बात करेंगे और रेनको के बहुत सारे पैटर्न पे हम लोग नेक्स्ट चिट चार्ट पे बात करेंगे और थोड़ा कुछ पोजिशनल सिस्टम पे हम बात करेंगे रेनको और पीएनएफ नेक्स्ट चिट चार्ट पे।
जो पोजिशनल ट्रेडर है वो कैसे आप बाई कर सकते हो बेस्ड ऑन पीएनएफ चार्ट। बिकॉज अभी इसमें अगर हम कवर करने जाए तो काफी लंबा हो जाएगा टाइम। सो नेक्स्ट चिट चैट में हम लोग सर करेंगे। चलो, okay guys, so I hope you question, enjoyed this episode of chit chat and some new intraday as well as position system on Renko for people interested in Renko. So let's hope the market gives a pullback for the sake of bulls next week. In fact, the Renko chart of Bank Nifty has already, as Raju said, has given a buy signal, and Nifty also above 17,800 as per this Renko chart. Beyond that, let's see if it crosses the high of Friday, and then, like I said, the resistance is of 18,000 and then 18,300. So anyway, so let's see what the next week holds for us. We have given the levels, so trade as per the levels, trade safely. Thank you.